show, the Success Stories talk show presented by Trident Communication. I, Simran, and would like you to introduce to our guest for today, Mr. Kuldeep Singh Shekhawat. He is the president of OFBJP UK since 2018, director MATV UK, Swagat TV USA, currently also an active member of the Conservative Party of UK. To know more about his journey of success, let's welcome Mr. Kuldeep to our show. Hello Kuldeep ji, how are you? I'm fine, thank you. Okay, so how did your journey begin from your village Prithvipura in Rajasthan to United Kingdom? Actually, it's a long story. My dad was in Air Force and he was posted at a lot of places in India. So we used to study at a lot of places. So I've studied in Delhi, I've studied in Jodhpur, I've studied a lot of places. But after education, I ended up in Bombay, basically to play cricket. And cricket resulted into getting into media. Got into media and media brought me to UK. We had a group of channels which were operating in UK, around 7-8 channels, and we started operating them in UK. Well, it all started in year 1998, and till now I'm doing the same job. Okay. Yeah. So, what made you enter the media industry as you are the director of MVTV UK and Swagat TV USA? That's right, yeah. In fact, I started producing some stuff in Bombay when I was in Bombay, and the television had just taken off in India. And we were on the production side while I used to be in Bombay. Then I thought of distributing it abroad, all the Indian content, including the movies. And started visiting a lot of countries, including UK. Found it a sort of a base where you can sit and distribute on both sides of the world. Like you can go to east from here and you can go to west from there. Yeah. It's quite simple and quite easy to manage from a place called London. So decided to move my base to London. That's how I ended up in London. And then somebody was already in television. We took part into the same team, joined the same group, and ended up with television. Okay, that's great. That's good to great. Okay, so what kind of struggles and challenges you have faced in your journey? Well, to start from the professional part of the story, it's not easy for anyone to come to a country and start a production house or a television station or even getting a job. Well, in those days, we had uh, some backing of funding, and we started those TV stations in this country. So, a lot of people wanted to join us for production, but nobody wanted to join us for funding. Nobody wanted to know us. Well, they were looking at funding from earning point of the view, not from providing funding. But that challenge was accepted. We met some good people. Television stations were doing quite well in those days. Suddenly, the 9/11 happened. Ji. And when 9/11 happened, Asians were in blacklist in UK. So the Okay. entire source of money that was being generated for us was from advertising revenue. That Ji. advertising revenue died down, or maybe it was pulled away. That no Asian channel should be supported in this country. So we had a huge setback in year 2002 Ji. when most of my channels which were broadcasting in UK were pulled down. It was a very bad period, bad phase of life. But yes, we pulled ourselves back and carried on with MATV. And then, actually, at that moment of time, MATV was not even owned by us. It was owned by some other people in Leicester, and it used to operate from Leicester alone. We and a couple of my friends together joined in, and then we bought MATV separately again in 2006,
And since 2006, I'm looking after MATV, and it's been a good 14 years, and it's been working quite well. दैट्स ग्रेट टू हियर कि आपने इतना हार्ड वर्क किया और अब आप उस मुकाम पे पहुंच गए हैं इतने हार्ड वर्क के बाद. इट्स गुड टू हियर. तो आपको आपकी इस जर्नी में किसने इंस्पायर किया एंड हु सपोर्टेड यू थ्रू आउट? सी, सबसे बड़ा सपोर्ट आपकी लाइफ में आपकी फैमिली से होता है. My parents, my mother, my father, my brothers, my wife, they all supported me. But there are some friends as well. कुछ दोस्त भी होते हैं. And मैं यहाँ पर एक ग्रुप है मुंबई का, बड़ा अच्छा नाम है उनका, वीनस फिल्म्स एंड रिकॉर्ड्स. वीनस के जो मेरे दोस्त थे, I'll name him, Ganesh Jain. He was one person who stood behind me in my time of crisis. जब हम यहाँ पर स्ट्रगल में थे और हमें लगता था कि यूके में we'll find no space to live, we'll have to go back. गणेश जैन ऐसे व्यक्ति थे, ऐसे शख्स थे जिन्होंने कहा कि भाई आप अपना बेस कायम रखो, हम हैं आपके साथ. और उन्होंने बहुत सारी अपनी जो प्रोडक्शन थी, फिल्में थी, वो बोला कि इनको डिस्ट्रीब्यूट करो आप. एंड यू नो दैट डिस्ट्रीब्यूशन गेव मी अ बेस अगेन. तो वो सपोर्ट, मुझे बड़ा अच्छा सपोर्ट मिला और आई एम थैंकफुल टू हिम कि उन्होंने मुझ में कॉन्फिडेंस दिखाया. और भी बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने साथ दिया उस टाइम, जिन लोगों ने मदद की इस टेलीविजन स्टेशन को खड़ा करने में. बम्बई के बहुत सारे अच्छे दोस्त हैं मेरे. तो कुल मिलाकर बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं जो आपको उस वक्त मदद करते हैं जब आपको जरूरत होती है, और बहुत सारे दोस्त ऐसे भी होते हैं जब आपको जरूरत होती है तो अपना मुंह मोड़ के चले जाते हैं. तो मेरी जिंदगी में वैसे दोस्तों का साथ रहा है जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया. आई एम थैंकफुल टू देम ऑल माय लाइफ. डेफिनेटली ऐसे दोस्तों का साथ हो हमारे जीवन में तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते. डेफिनेटली हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई एक ऐसा होता है दोस्त जो हमेशा साथ खड़ा रहता है, चाहे दुख हो या सुख. जी. ओके, सो व्हाट वाज द आइडिया? Why did you choose to be in politics as you are the president of OFBJP UK and an active member of Conservative Party? बड़ी लंबी कहानी है. 1991 में चंद्रशेखर सरकार जब दिल्ली में बनी थी तो मेरे मामा कल्याण सिंह कालवी जी उस सरकार में मंत्री थे और मैं उनके साथ बहुत एक्टिव था. चंद्रशेखर जी के साथ भी बहुत एक्टिव था उस वक्त. और राजनीति का वो फेज ऐसा था जब भारत बहुत तकलीफ में था. वी हैड अ वेरी सीरियस इशू, सो मेनी इश्यूज, इंक्लूडिंग इफ यू रिमेंबर आवर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी वाज असैसिनेटेड. वो सब वही पीरियड था जब चंद्रशेखर जी की सरकार थी भारत में और बड़ा टफ टाइम था. आई स्टार्टेड नोइंग द इंडियन पॉलिटिक्स देन. उसके बाद मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के, जब मुझे राजनीति अच्छी नहीं लगी कि भाई यहाँ गंदगी बहुत ज्यादा है, मैंने इंग्लैंड का रुख किया और अपना धंधे में लग गया कि हाँ भाई, आई शुड बी रनिंग माई टेलीविजन, आई शुड बी डूइंग माई बिजनेस एंड दैट्स ओके. कम मोदी जी ऑन द सीन, एंड व्हेन ही डिसाइडेड टू कम ऑन द सीन, आई रियलाइज्ड दैट a wonderful person is joining the politics in a big way and he is going on the national scene. फिर again I was pushed to the same scene in UK while I was in UK. In those days मैं इंग्लैंड में था, तो मुझे लोगों ने बोला कि भाई अब तो मोदी जी जैसे आदमी सेंटर में आ रहे हैं, वो प्रधानमंत्री होंगे और आपको ज्वाइन करना चाहिए पार्टी को ताकि अच्छे लोग पार्टी में जुड़े. तो यहाँ पर भी संघ के बहुत सारे अच्छे लोग हैं जिन्होंने मेरी मदद की, जिन्होंने मेरा साथ दिया. जो ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी उस टाइम थी, उसके भी कुछ सदस्य थे जिन्होंने मुझे जोड़ा साथ में. और कुल मिला के ये हुआ कि इन 2017-18 I became party president in this country. पर कहानी 1991 से शुरू हुई थी. जी, definitely. Yeah. Okay, so did academic qualification help in politics? हाँ, कुछ हद तक इसका फर्क पड़ता है. मैं ग्रेजुएट हूँ जोधपुर यूनिवर्सिटी से और पॉलिटिकल साइंस ही मेरा सब्जेक्ट था. उसके बाद मैंने कुछ डिप्लोमास किए बिजनेस मैनेजमेंट वगैरह के, लेकिन मेरा पॉलिटिकल साइंस वाला जो सीन था वो रहा.
तो पॉलिटिकल साइंस अगर आपने पढ़ी है तो आपको थोड़ा आइडिया होता है कि राजनीति कैसे काम करती है और राजनीति में क्या होता है। तो वो एक चैप्टर था जो वापस मेरी जिंदगी में जुड़ गया कॉलेज के बाद या यूनिवर्सिटी के बाद। पॉलिटिकल साइंस का वही चैप्टर मेरी जिंदगी में फिर जुड़ गया और मैं फिर, क्योंकि इसमें एक इंटरेस्ट का सीन ये है कि वी आर नॉट अ वेरी बिग ह्यूज नंबर इन यूके। हम लोग करीब भारतीय यहाँ मुश्किल से 20 लाख लोग होंगे सब मिलाकर, मतलब हर कम्युनिटी को आप ज्वाइन करें तो 20 लाख लोग इंग्लैंड में भारतीय होंगे। अब उन 20 लाख लोगों की अपनी प्रॉब्लम्स हैं, अपने इश्यूज हैं। उनको इंडिया जाना है तो प्रॉब्लम है, उनको इंडिया का वीजा मिलने का प्रॉब्लम है, उनका ओसीआई बनना है तो प्रॉब्लम है। आपको सारे टाइम ऐसे लोग मिलते ही रहते हैं। हम मीडिया में हैं तो हमारी एक्सेस हाई कमीशन तक ज्यादा थी, क्योंकि सारे टाइम हम हाई कमीशन के लोगों से काम करते थे, बात करते थे। तो उससे ये हुआ कि पब्लिक का जो हमारा फ्लो था या मीटिंग का फ्लो था वो बढ़ता ही गया, इंटरेक्शन बढ़ता ही गया। लोगों को समझ में आता है कि भाई हाँ, जो आदमी हमारी मदद करता है उसको फोन करो। तो जब ऐसा लगा कि हमें काम करना ही है तो व्हाई नॉट जॉइन द पॉलिटिक्स। तो दैट इज व्हाई हमने इंडियन डायस्पोरा की हेल्प करने के लिए, इंडियन डायस्पोरा को यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए, इंडियन डायस्पोरा को यहाँ पर स्टैब्लिश करने के लिए हमने ये ओवरसीज फ्रंट्स ऑफ बीजेपी या ओएफ बीजेपी को का जो ये चैप्टर शुरू हुआ और इसको हमने आगे बढ़ाया। So that's great to hear कि academic चीजें भी पॉलिटिक्स में हेल्प करती है एंड हाउ आपने चीजों को आगे बढ़ाया. It's really good to hear that. तो we just want your view that is UK politics and Indian politics work in same way? Frankly speaking, no. India is a huge canvas. When you're talking about billion people, it's a huge canvas. UK 4 करोड़ लोग हैं, उनमें से 1 करोड़ लोग फ्लोटिंग है. कभी कोई यूरोप में घूमने चला जाता, कोई अमेरिका चला जाता, कोई जॉब में मिडिल ईस्ट चला जाता, इंडिया चला जाता, कहाँ नहीं चला जाता. तो फ्लोटिंग करीब 10 मिलियन लोग फ्लोटिंग है इस देश में. तो रफली 3-3.5 करोड़ लोग ही हैं जो एक्टिवली इस कंट्री में होते हैं. इवन देन यहाँ पर पॉलिटिक्स क्लीन बहुत क्लीन है. हमारे तो जो आई विल बी ऑनेस्ट इन सेइंग कि हमारा जो एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन होता है, दैट इज मोर विजिबल, मोर वाइब्रेंट एंड आई विल यूज दिस वर्ड कि उसमें ज्यादा करप्शन होता है देन इन यूके. मतलब उसमें इतना ज्यादा करप्शन होता है. आपके यहाँ पर इतने सारे पोस्टरबाजी होती है, इतना सारे बैनर्स लगते हैं, इतने सारे लाउड स्पीकर्स चलते हैं, इतने सारे वर्कर्स आपके दौड़ रहे होते हैं. लोगों को क्या नहीं मतलब दिया जाता, बोला नहीं जाता, सब कुछ बहुत कुछ होता है हिंदुस्तान में. इन इंग्लैंड ऐसा कुछ नहीं होता. बड़ी यहाँ का लोकल एमपी खुद ही अपने पैम्पलेट बेचारा बांट रहा होता है. हमारे आपका इंडिया का एमपी तो मतलब मिलने के लिए आपको 10-20 लोगों को फोन करना पड़ता है, तब जाके चांस मिलता है आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से मिलने का. यहाँ का एमपी बड़ा आराम से हर किसी के दरवाजे पे चला जाता है, अपना पैम्पलेट बांटता है और उनसे पूछता भी कैसे हो, क्या है आपका हालचाल, ठीक है, दैट्स इट. तो बड़ा सिंपल इलेक्शन प्रोसेस है, बड़े सिंपल पॉलिटिक्स है. आप बिलीव करें, यहाँ का प्राइम मिनिस्टर भी बहुत बार ट्रेन में आता जाता है. तो उसके पिक्चर्स चलते हैं कि भाई आज हमारे प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ट्रेन से अपने घर लंदन चले गए. हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर अफोर्ड नहीं कर सकता. एक सिक्योरिटी इश्यू और भी है वहां पर. लेकिन यहाँ और वहां में बहुत बड़ा इशू है रिगार्डिंग द पैराफेनालिया. हमारा देश जो है हिंदुस्तान, वहां पर पैराफेनालिया इतना बड़ा, उसका लार्जर देन लाइफ कैनवस खड़ा हो जाता है. मतलब एक नेता यानी बहुत बड़ी चीज हो गई. यहाँ पर नेता यानी ही इज रियली योर सर्वेंट. वो आपका सच्ची में सेवक है. वो आपकी तकलीफें, दुख दर्द दूर करने के लिए ही चुना गया है. और बहुत छोटा कैनवस है, 10,000-8,000 वोटों से जीतता है वो यहाँ का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. बताइए. हाँ, अपने यहाँ तो लाखों में बात चलती है. बिल्कुल. अगर 8-10 हजार वोट मिल गए उसको तो वो जीत जाएगा. इतना छोटा कैनवस है इंग्लैंड का. पर हाँ, ये है ईमानदारी बहुत है. ग्रास रूट पर आपको कोई चीटिंग नहीं मिलेगी.
आज भी यहाँ पर आपको बड़ा ईमानदारी से बंदा वोट करने के लिए जाएगा और अपना वोट दे के आएगा। पेपर सिस्टम है आज भी, अपने जैसा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं है। इंग्लैंड में पेपर सिस्टम है, लेकिन बहुत क्लीन है। पॉलिटिक्स इज क्वाइट क्लीन इन दिस कंट्री। आपको यहाँ का पॉलिटिशियन, जो हिंदुस्तान में बड़ी बड़ी बातें होती है राजनीति में कि भाई इसलिए राजनीति में गए कि बड़े पैसे बनेंगे, बड़ा ये होगा, बड़ा माहौल होगा, मंत्री बनेंगे, वो सब यहाँ मंत्री तो बनते हैं, लेकिन स्टिल ही इज अप्रोचेबल। आप उसको बड़े आराम से चिट्ठी लिख सकते हो, आप उसको बड़े आराम से फोन कर सकते हो, बड़े आराम से आप उससे गुफ्तगू कर सकते हो। यू कैन टॉक टू हिम लाइक ऑन अ नॉर्मल चैनल। आपको ऐसा महसूस नहीं होने देगा कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और आपसे बात नहीं कर रहा हो या बात नहीं करना चाहेगा। ही वुड टॉक टू यू। अपोजिशन का है तो भी करेगा, इंडियन है तो भी करेगा, ब्रिटिश है तो भी करेगा, और फ्रॉम एनी अदर कम्युनिटी है, इंक्लूडिंग यहाँ पर 7-8 पाकिस्तानी भी एमपी हैं। बात वो भी करेंगे आपसे और बड़ा दिल से बात करेंगे। बात करने के लिए यहाँ परेशानी नहीं होती। वहाँ हिंदुस्तान में ऐसा 1-to-1 इश्यू हो गया, मैं इससे तो बात ही नहीं करूंगा, ये होगा वो होगा, वो ऐसा माहौल यहाँ नहीं है। भारत में तो पॉलिटिक्स मतलब मेरे ख्याल से करप्शन और पैसा होता है ज्यादातर। जी जी, सही कहा आपने। वो तो या तो उसमें वही पोस्टर्स वगैरह, नॉइज पोल्यूशन और लैंड पोल्यूशन, ये सब तो डेफिनेटली होता ही होता है। ये बहुत अच्छा लगा सुन के कि वहां पर ऐसा होता है कि वहां के जो एमपीज वगैरह हैं वो इतनी क्लोजली जाके पब्लिक से बात करते हैं, क्योंकि जब तक बात नहीं करेंगे तब तक प्रॉब्लम्स का पता कैसे चलेगा। आप विश्वास करेंगे, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो इस वक्त इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है जी, आपको इलेक्शन के टाइम पे उनके भी एक पोस्टर लगा हुआ नजर नहीं आएगा उनकी पूरी कंस्टिट्यूएंसी में, सिवाय उनके ऑफिस के आगे। या कोई अगर कोई मोर्चा निकला कोई उसके फेवर में, तो वो जरूर थोड़ा बहुत होता है। अदरवाइज इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि उनके दीवारों पे पोस्टर लग जाएं, बड़े बड़े बैनर लग जाएं, आपका स्वागत है, आपका ये है, आपका वो है, मैं आपका सेवक हूँ, वो कुछ भी नहीं यहाँ नजर आता। नेवर। किसी फेस्टिवल से 2 दिन पहले ही सुबह उठेंगे तो सारे घरों की दीवारों पे पोस्टर्स लगे हुए हैं, सारी दीवार एकदम गंदी हो रखी होती है, अलग अलग पार्टी के पोस्टर्स। विश्वास कीजिए, यहाँ का एमपी आपको फोन करेगा कि मुझे डोनेशन चाहिए। उसका डोनेशन का अमाउंट कितना होगा? 500 पाउंड। 500 पाउंड मांगेगा और वो बोलेगा कि वो भी मुझे नहीं चाहिए, जो मेरा प्रिंटर पैम्पलेट बना रहा है प्लीज आप उसको पे कर दें तो मेरे पैम्पलेट्स प्रिंट हो जाएंगे, जो हैंड बिल्स होते हैं जिनको लेके वो जाते हैं। बड़ा साफ सुथरा, मतलब पूरे इलेक्शन कैंपेन का खर्चा 7-8 हजार पाउंड होता है, यानी हिंदुस्तान के हिसाब से 5-6 लाख रुपया। अरे यहाँ एक एमपी इलेक्शन का यहाँ पे तो 5-6 लाख रुपए के पैम्फलेट्स ही छप जाते हैं बस। बहुत फर्क है, बहुत क्लीन पॉलिटिक्स है यहाँ की, बड़ा साफ सुथरा माहौल है। और उसी में अच्छी बात ये भी है कि नेता यहाँ के करप्ट नहीं है। जो करप्ट हैं वो परेशान होते हैं फिर बहुत जल्दी। पाकिस्तानियों ने कुछ माहौल बिगाड़ा यहाँ पर तो जल्दी जब परेशान हो रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा सुन के वहाँ ऐसा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कि so how is Kashmir and Khalistani movement is fueled in UK? Is this a real movement and what does Indian diaspora think about it? धन्यवाद भाट। Honestly speaking, as a president of Overseas Friends of BJP, I have put out a point saying Kashmir issue and so-called Khalistan issue, ये हिंदुस्तान के अपने इशू हैं। इंग्लैंड का इनसे कोई लेना देना नहीं है। They should not be raised in United Kingdom. यहाँ पर आने ही नहीं चाहिए, इन इश्यूज को यार डिस्कस भी नहीं करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तानी डायस्पोरा है जिसने इसको आगे बढ़ाया, उन्होंने शुरू किया। तो अब 2 तरह के एलिमेंट यहाँ पर है, एक पाकिस्तानी डायस्पोरा और एक खालिस्तानी इंडियंस। कुछ, आई विल नॉट से एंटायर सिख कम्युनिटी हिंदुस्तान के बहुत क्लोज है, और मैं चाहता हूँ और मानता हूँ, मेरी पर्सनल बिलीफ है कि करीब 95% सिख हिंदुस्तान के साथ खड़ा है बाहर भी। लेकिन वो एक छोटा सा 5% वाला पोर्शन है जो आई थिंक दे आर फंडेड, उनको ISI की फंडिंग होगी, वेस्टेड इंटरेस्ट की फंडिंग होगी, जो हिंदुस्तान में कुछ ना कुछ माहौल ऐसा क्रिएटेड रखना चाहते हैं कि भाई
गंदगी हो, बात इस तरह से आगे बढ़े कि हाँ खालिस्तान नाम का कोई एक कीड़ा वहां पर चलता रहे। जी वो उस किस्म का माहौल यहाँ पर है। पर आम आदमी, आम सिख खालिस्तानियों के साथ नहीं है, आम पंजाबी खालिस्तानियों के साथ नहीं है, आम इंडियन खालिस्तानियों के साथ नहीं है। दे नोबडी लाइक्स देम, नोबडी वांट्स टू बी एसोसिएटेड विद देम। और जब प्राइवेटली आप किसी अच्छे सिख से बात भी करोगे तो वो बोलेगा पाजी ये ते बंदे होते हैं, मतलब दैट इज देयर, या दे डोंट टेक देम सीरियसली। बट यस, these two issues are active in this country. Kashmir is being kept active by ISI because उनका अपना एक मेथड है काम करने का, और वो एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन खड़ी रखी हुई है उन्होंने, कश्मीर फ्रंट, कश्मीर दैट, आजाद कश्मीर देश। तो वो लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कभी मोर्चा निकालते हैं, कभी ये करते हैं, कभी धरना करते हैं। वो जो अपने एशिया में होता है वैसा का वैसा ही करने की यहाँ कोशिश करते हैं, और उससे यहाँ का माहौल खराब होता है। फिर इंडियन कम्युनिटी, मेरे आने के बाद से हमने रिएक्शन देना शुरू किया। 2018 के पहले यहाँ कोई रिएक्शन इंडियंस देते ही नहीं देते। उनको वहां अगर मोर्चा हाई कमीशन पे आया है तो आया है, कोई बात नहीं। बट नाउ वी ऑल्सो रिएक्ट टू दैट। हम भी मोर्चा लेके वहां पहुंच जाते हैं तो सामने बड़ा कन्फ्रंटेशन माहौल हो जाता है, कन्फ्रंटेशन जैसा माहौल खड़ा हो जाता है वहां पर ये है कि आम आदमी, आम इंडियन, आम भारतीय जो इंडियन ओरिजिन का आदमी है वो इनके साथ नहीं है, और वो बहुत प्यार करता है अपने देश को, हिंदुस्तान के साथ उसका बहुत लगाव है, हिंदुस्तान के बारे में जानने की उनकी बहुत इच्छा रहती है। हर जैसे ही इलेक्शन शुरू होते हैं यहाँ का हर इंडियन न्यूज पे बैठा होता है कि भाई क्या हुआ आज, किसकी पार्टी जीती, क्या जीता। उनको बड़ा मन में ये है कि हमारे देश में क्या हो रहा है। सो दे आर वेरी प्रोएक्टिव। लेकिन लोगों ने, यहाँ कुछ लोगों ने माहौल खराब किया हुआ है। आई थिंक विद टाइम इट विल इम्प्रूव। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। टाइम के साथ साथ चीज़ें इनकी इम्प्रूव होनी तो चाहिए। एंड ये जो मैटर है कश्मीर एंड खालिस्तानी मूवमेंट का, ये भी सॉर्ट हो जाना चाहिए जल्दी। सबके लिए इसी, सबकी भलाई इसी में है, इसी में जी। सो आपके हिसाब से गवर्नमेंट को लाइक व्हाट स्टेप शुड यू सजेस्ट टू इंडियन गवर्नमेंट टू काउंटर दिस फेक नैरेटिव? frankly speaking, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्टिव है अभी। ऐसा नहीं है कि they are not active, they are not like what it used to be, but we have a very, what do you call, unfocused high commissioner right now. This latest high commissioner who has joined UK, I think एक कारण कोविड भी होगा। I will not just say that she is not active because she doesn't want to be. Maybe she is just struggling, नहीं है। एक करीब उनको 8 महीने हुए आके, और शी हैज जॉइंड ड्यूरिंग द कोविड टाइम्स। तो वो प्रोएक्टिव जैसी नजर नहीं आती, कम्युनिटी के लोगों से नहीं मिल रही, या उनको बोलती हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे मिलेंगे। अब होता ये है कि अगर आप इस देश में हो, यहाँ पर हमने हाई कमीशन की जो इमेज क्रिएट की है वो है कि इट्स फॉर पब्लिक, इट्स फॉर द इंडियन डायस्पोरा, और आप इंडियन डायस्पोरा को ही नहीं मिलोगे, लोगों के पास एक्सेस भी नहीं होगी, लोग सजेशन भी नहीं दे सकते आपको, लोग मिल भी नहीं सकते, तो थोड़ा माहौल बिगड़ता है। उनको लगता है कि वी हैव बीन लेफ्ट आउट, दैट हाई कमीशन हैज बिकम अनअप्रोचेबल। कुछ ऑफिसर्स अच्छे भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि सभी लोग एक ही तरह के हैं, बहुत कुछ ठीक ठाक काम होता भी है वहाँ। उस वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो इनिशिएटिव यहाँ होना चाहिए था, जैसे यहाँ पर फार्मर्स का मूवमेंट हुआ जी, यहाँ पर भी बड़ा सा प्रोटेस्ट लेके वो लोग आ गए जी। You won't believe, करीब 4000 फार्मर्स या सो कॉल्ड सपोर्टर्स ऑफ फार्मर्स हाई कमीशन के सामने खड़े हो गए आके जी, इन कोविड टाइम्स, व्हिच इज नॉट अ गुड थिंग टू हैपन। हाँ, 4 से 5000 लोग आ गए और तरह के व्हीकल्स लेके नारे लगा रहे हैं, जोश में है कि साहब मोदी तुम बर्बाद करेंगे, मोदी तुम खराब हो, मोदी ये मोदी वो है। तो गवर्नमेंट शुड हैव बीन प्रोएक्टिव टू काउंटर दैट। वो काम बाद में ओवरसीज फ्रंट्स ऑफ बीजेपी ने किया, और हमारे कुछ और संस्थाएं हैं यहाँ पर, उन्होंने किया। हम सभी सिख लोगों से मिले, उनको अप्रोच किया, उनके फोन कॉल्स हुए, उनको समझाया कि भाई आप इन खालिस्तानियों के साथ कहाँ जुड़ गए जी। वहां पर खालिस्तान का फ्लैग था, सबसे आगे हाई कमीशन के सामने खालिस्तान का फ्लैग लग गया जी। और जो 4-5 लोगों का एक ग्रुप है जो शुरू से एंटी इंडिया है, और उनका मतलब दे आर फोकस्ड
चलो वो अपने कॉज में है, वो उनका अपना फोकस है कि भाई खालिस्तान बनाएंगे हम लोग, कहाँ बनाएंगे पता नहीं, क्या होगा पता नहीं, कैसे होगा पता नहीं, क्या खालिस्तान का टाइप होगा कुछ पता नहीं, लेकिन उनका ये है खालिस्तान का झंडा लेके वो हर जगह जाते हैं। तो जब उन लोगों को, अच्छी फैमिलीज के लोगों को, सब गुरुद्वारों को समझाया गया कि भाई आप इन लोगों के साथ कैसे नजर आ रहे हो, दे विड्रू। ये बात संडे को मोर्चा हुआ, थर्सडे को उन्होंने दोबारा कॉल दी। यू वोंट बिलीव, वहां पर 10 लोग नहीं पहुंचे, नहीं आए लोग, क्योंकि दे डोंट वांट टू बी एसोसिएटेड विद दीस खालिस्तान। तो जनता बहुत अच्छी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस पूरे मूवमेंट में, मैं इस पूरे मूवमेंट की बात करूंगा कि ये जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स वाला मूवमेंट है, ये जून में बिल आया था जी। जून से लेके अक्टूबर तक सरकार कुछ नहीं करती रही। अगर जून में ही सरकार ने इसके ऊपर काम किया होता, लोगों तक पहुंचे होते, लोगों को समझाया होता कि भाई ये बिल इसलिए है, इस पे ये होना चाहिए था, इस पे ये किया गया है, ये कारण है, तो आई थिंक इट कुड हैव डाइड, थिंग्स वुडंट हैव गॉन टू दिस स्टेज कि आज हम पूरे वर्ल्ड में इसी सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर अलग से बोल रहे हैं, 20-25 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, या एक्चुअली 36 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट यहाँ के लिख रहे हैं चिट्ठी कि जी हिंदुस्तान में पता नहीं क्या तूफान आ गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हु आर दे टू राइट टू इंडिया? इंडिया इज अ प्रॉपर डेमोक्रेटिक नेशन। वहां पर उनको, पर मेरा इसमें मानना ये है कि भाई बेसिकली जो हिंदुस्तान में हो रहा है वो हिंदुस्तान की सरकार देखेगी। जी बिल्कुल सही। हाँ, लेकिन फैक्ट था कि यहाँ पर वो इशू बने, आगे बढ़े, काफी उनमें ड्रामा हुआ, खूब सारा इशू खड़ा हुआ, लोग सड़कों पर उतरे, और आज भी माहौल इतना बढ़िया नहीं है। बट फिर भी जो कोशिश की गई लोगों को समझाने की कि वो सफल रही, वो तो एकदम सफलता, वो तो उसमें वो तो सफल रही। हाँ, वो सफल रही। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाउ डू यू सी इंडियन डियास्पोरा शेपिंग अप इन यूके एंड इन लार्जर टर्म्स इन यूरोप? बड़ा अच्छा सवाल है। पहली चीज, I'll be honest about Indian diaspora, सबसे वाइब्रेंट डायस्पोरा है इंग्लैंड का जी, और यूरोप का, यू कैन से। दूसरी, मुझे खुशी होती है इस बात को कहते हुए कि इंडियन डायस्पोरा वो है जो फ्री के टुकड़ों पे पलना नहीं चाहता। मतलब यहाँ पर एक सिस्टम है जहाँ पर सरकार आपको मदद करती है, डोल सिस्टम जिसको बोलते हैं, कि आप अनएम्प्लॉयड हो तो आपको पैसे मिलेंगे, आप घर पे बैठे रहिए, आपको कुछ ना कुछ सरकार मदद देगी। भारतीय डायस्पोरा वो डायस्पोरा है जो नहीं चाहता कि उनको सरकार से मदद लेनी पड़े। वो हार्ड वर्किंग डायस्पोरा है, बहुत अच्छा काम करता है। वी आर ओनली 2% इन नंबर, लेकिन हमारा जीडीपी में करीब 11% के आसपास है। मतलब वी आर कंट्रीब्यूटिंग टू द ब्रिटिश जीडीपी क्वाइट अ बिट जी। फॉर्चुनेटली ये सरकार जो है वो प्रो इंडिया है थोड़ी, इस वजह से 4 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हमारे हैं, 4 मिनिस्टर हैं सर गवर्नमेंट में हमारे इंडियन ओरिजिन के। तो उसकी वजह से इंडियन डायस्पोरा की जो शेप है वो बड़ी स्ट्रांग है। वी आर गेटिंग इनटू अ वेरी राइट डायरेक्शनल व्हाट यू कॉल सिचुएशन। अगर डायस्पोरा इसी तरह से काम करता रहा तो सून वी विल हैव एन इंडियन प्राइम मिनिस्टर इन यूके। बहुत जल्दी ही यूके में एक इंडियन ओरिजिन का प्राइम मिनिस्टर होगा जो यूके का प्राइम मिनिस्टर होगा। तो इंडियन डायस्पोरा बहुत अच्छी, यूरोप में भी करीब वैसा ही थॉट है, लेकिन यूरोप में अभी वक्त लगेगा। वहाँ पर काफी अलग अलग जगह पे अलग अलग माहौल है, अलग अलग देशों के अलग अलग हिसाब किताब है, लेकिन यहाँ की पार्टी पॉलिटिक्स में, यहाँ की लोकल पॉलिटिक्स में, यहाँ की जो सो कॉल्ड काउंसिल्स, जो अपने यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट होते हैं उसको यहाँ काउंसिल बोलते हैं। हाँ, यहाँ की काउंसिल में करीब 300 के आसपास इंडियन काउंसलर्स हैं अभी। तो वी आर क्वाइट प्रोएक्टिव, यहाँ की पॉलिटिक्स में हम एक्टिव है। आज इंग्लैंड का सबसे रिच फैमिली, द रिचेस्ट पर्सन ऑफ इंग्लैंड इज इंडियन ओरिजिन, हिंदुजा फैमिली। दे आर द रिचेस्ट इन दिस कंट्री। बहुत अच्छी बात है। हाँ, सो इंडियन डायस्पोरा ओवरऑल इज डूइंग ए वंडरफुल जॉब। दे आर हार्ड वर्किंग पीपल, अपनी मेहनत से आगे बढ़े हैं। बहुत सारे गुजराती और पंजाबी कम्युनिटी के लोग जो हैं वो ईस्ट अफ्रीका से यहाँ पहुंचे, बिकॉज दे वर थ्रोन आउट बाय इदी अमीन
ड्यूरिंग 1970। बड़ा एक अलग किस्सा है वो। उनको वहां से धक्का देके निकाल दिया गया था, लेकिन वो सब इंग्लैंड आए जीरो से स्टार्ट करके आज दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब्स। और इसी तरह से इंडियन डायस्पोरा इज, आई थिंक, वन ऑफ द बेस्ट डायस्पोरा इंग्लैंड कैन हैव in their country is Indian diaspora. जी जी जी। तो दैट्स ग्रेट टू हियर कि इंडियन डायस्पोरा हमारा इतना अच्छा है एंड बेटर देन मेनी अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड। काफी अच्छा लगा ये बात सुन के। ओके, सो what are the future plan, like what are your future plans, or can you tell us about your any upcoming project? See, I run a TV channel in UK called MATV. इसका एक्सपांशन का काम चल रहा है। Soon you will see us in Canada. US में we are already operating. और ओवरसीज फ्रंट्स ऑफ बीजेपी का जो स्ट्रक्चर है पॉलिटिकली, वो भी हम बड़ा कर रहे हैं। हमारी यहाँ स्टेट यूनिट्स पहली बार होगी। We did some state unit work during the last election in 2019, लेकिन अब प्रॉपरली हम डिजाइन करके हर स्टेट की यूनिट भी यहाँ रखेंगे। तो ओवरसीज फ्रंट्स ऑफ बीजेपी की, जैसे आज ही हमारी तमिलनाडु यूनिट का एक बड़ा इवेंट था आपके शुरू के पहले, तो हम हर स्टेट की यूनिट खड़ी करेंगे ताकि हर स्टेट को रिप्रेजेंटेशन मिले, हर स्टेट को ये पता हो कि भाई हमारे लोग इंग्लैंड में भी है। अगर उस स्टेट से कोई डिग्नेटरी यहाँ आता है तो उनको प्रॉपरली ट्रीटमेंट मिलेगा, उनके साथ बात होगी, उनको समझ में आएगा, उनका लुक आफ्टर होगा। तो वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म फॉर द इंडियन कम्युनिटी व्हेन दे कम टू यूके। उनके पास एक सपोर्ट सिस्टम इंग्लैंड में खड़ा होगा। दैट इज व्हाट वी आर। नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी हियर, आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, वी आर जस्ट अ प्रेशर ग्रुप। हम यहाँ पर कोई इलेक्शन नहीं लड़ रहे होते हैं, और बीजेपी इज जस्ट अ पॉलिटिकल ग्रुप व्हिच इज प्रोएक्टिव फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कम्युनिटी, व्हिच इज नॉट फॉर डे टू डे सॉर्ट ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री। हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। हाँ, हम सपोर्ट करते हैं। जैसे हमको कंजर्वेटिव को सपोर्ट करना तो उनके लिए बोलेंगे, हमको लेबर को सपोर्ट करना तो हम उनके लिए बोलेंगे। दो ही बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां हैं यहाँ पर। बट ओवरऑल हम क्या चाहते हैं, इंडियन कम्युनिटी चाहती है कि उनको रिकॉग्निशन मिले। उन्होंने जो देश के लिए किया है, इंग्लैंड के लिए किया है, उस पे उनका जितना अधिकार उनका बनता है, उसको उस अधिकार को रिकॉग्नाइज किया जाए कि यस, इंडियन डायस्पोरा ने हमारे देश के लिए ये किया। और उसमें और बहुत सारे इश्यूज है, बहुत लंबा इंटरव्यू हो जाएगा अगर मैं वो सब इश्यूज, क्योंकि वो वर्ल्ड वॉर से लेके और पता नहीं क्या क्या बातें जो हैं, वर्ल्ड वॉर के टाइम का इंडियन डायस्पोरा का कंट्रीब्यूशन कैसे भूला जा सकता है। सो इंडियंस हैव डन वेरी वेल, और हम यही चाहते हैं कि हमारा इस तरह से काम आगे बढ़े कि हम हमारे देश से आए हुए लोगों को हर तरह से एजुकेशन, जॉब, सिस्टम, बैंकिंग, जहाँ भी मदद कर सकें जरूर करें, और उनको हम ये बता पाएं कि भाई यहाँ पर एक सपोर्ट सिस्टम है, क्योंकि वी आर ए प्रेशर ग्रुप रेडी एंड वेटिंग फॉर यू। तो ऑल द, आपने बताया आपने आपके फ्यूचर प्लान्स के बारे में, ऑल द बेस्ट फॉर दैट, कि आपका जो फ्यूचर प्लान है या प्रोजेक्ट है, आपको उसमें सफलता मिले और आपका वो प्रोजेक्ट अच्छे से हो जाए जो आप लोगों के लिए सपोर्ट करने के लिए कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट फॉर दैट जी। थैंक यू। As our show name is Success Stories, so what is true success for you? Well, it's a very difficult question to answer. You can put success in various forms, but yeah, if you are content with your life, if you are happy with what you're doing, if you are able to help your fellows in this country, if you are able to support the Indian diaspora in this country, I think that is the so-called meter to measure my success in this country. So I think it's okay. I'm happy about it the way it is. So any regret, like आप कुछ करना चाहते थे but due to time consistency आप वो कर नहीं पाए? It's a long story. मैं अपने स्कूल और कॉलेज डेज में अच्छी खासी क्रिकेट खेलता था, एंड आई हैव रिप्रेजेंटेड माय स्टेट आल्सो, बट लेटर ऑन मैं, बिकॉज ऑफ सम प्रेसिंग इश्यूज दैट टर्न्ड अप, आई कुड नॉट प्ले फॉर द कंट्री एंड आई हैड टू लीव क्रिकेट ऑल टुगेदर। बस वो एक रिग्रेट लाइफ में रह गया कि क्रिकेट मेरे हाथ से छूट गया उस टाइम, एंड मैं बॉम्बे गया था क्रिकेट खेलने एक्चुअली। I wanted to join good cricket teams in Bombay, couldn't do it.
कभी कभी मैन proposes God disposes वाला सीन है वो. So it didn't happen. Other than that, yes, I'm okay, fully content. Whatever you need in life is being done. Whatever you feel like you should do for your country, we are doing it. Now we have to look after two countries. Britain is our adopted nation, so yes, we look for the betterment of this country also. And India is our mother country where we were born, so we also look after India. So both ways, we do work very hard and try and see that, okay, my fellow Indians don't get hurt. They are supported in all the way. During pandemic, we really worked very hard. Actually, we were more active in pandemic than any other diaspora in this country. I can tell you that much. We really worked very hard to support the Indian diaspora in this country. My team, I'm thankful to my team. Even we had associations like Rajasthan Association and all these, and we have a unit called Akshay Patra here. Yes. The amount of work done in this country was phenomenal. I can only tell you it was not possible without the support of all those people, but we really did a wonderful job during pandemic in last 5-6 months. That was a really good initiative आप जो बता रहे हैं, and I hope जो ये लोग वीडियो देखें आगे वो आपकी बातों से और इंस्पायर होके आगे अगर ऐसी कोई और प्रॉब्लम आए तो उसमें ऐसे हेल्प कर पाएं और सब अच्छे से हो. डेफिनेटली. Thank you. We are here to support the Indian community by all means. जी बिल्कुल. Okay, so a lastly message for our viewers. Well, as such, the biggest message I can give you is you have a wonderful Prime Minister. You cannot have a better Prime Minister than what you have right now. I think you should support him all the way. Give him your best shot. Try and do whatever he's asking for the country. I think India has great chance of moving to the what you call the highest ladder in the world under Modi ji. So please, I request my fellow Indians to be proactive and support this government and the Prime Minister, Mr. Narendra Modi. Thank you. Thank you so much. So thank you so much for joining us today, sir. It was pleasure talking to you and having you on our show and having this conversation with you. We are really pleasure to have you here. Thank you.